have submitted their assignment. And if you have any queries related to the last class, please do let me know. Was everything clear from the last class? Yes, no. Interns, Yes, am I ma'am, clear. audible to you? So please be interactive because like in every class, I always tell you to be interactive. Like so how many of you haven't submitted your assignment yet? Because Me, I have, please rename yourself. Sufyan, ma'am. Sorry, Sufyan, can you spell it? Sufiyyan. Okay. May I know the reason why you haven't submitted your assignment? Because I already told you that I will not accept any late submissions. And for the assignments, the last three assignments, except like the block submission assignment, rest of the three assignments, I already gave you the deadline till Sunday. And I was receiving assignments till Ma'am, Tuesday. actually, Please let me complete. I was receiving assignments from all of you, like many of you, till Tuesday. So those assignments will not be entertained because I already gave you two times deadlines. Earlier also you haven't completed, and then the second deadline was till Sunday for the rest of the three assignments, but none of you have submitted it on time. For those who have submitted it on time, I have replied to their assignments through mail. So, if I'm not responding to your mail, your assignments you sent me after like Sunday, I'll not entertain those because this is a repetitive thing that we are giving you deadlines and then also you are not like submitting on time. Okay. And for those for the blog submission assignment, many of you have like misunderstood that you have to do 5 blog submissions, and for any of those 3 blog submissions you have to do 10 social bookmarking each. Like for example, then you have to do 30 social bookmarking. So many of you were confused regarding this. So please, if you I have like mailed many of you, I have checked many of the assignments of you all. So please rectify those mistakes and like send me the rectified assignment as soon as possible, like before this weekend. And for the first 3 assignments, I'll not check any of them now. Okay, so now, if you have any queries related to last class, please raise your hand. And if everything is clear, I want thumbs up or yes from your side. And then we will start with our today's session. Thank you, Niklesh, for responding. What about others? Okay. So any one of you can like just unmute themselves and brief all of the interns present here about the last class, like what you learned in the last class. What were your learnings? What were your takeaways from the last class? Website designing. Website designing? No. As WordPress, using WordPress, we can make a web page. Ma'am, on-page SEO is basically about website structure, ma'am. The heading should be
at proper place, Yes. and internal linking should be there like that. Yes. Good. Yeah. So, Is of main heading should be one heading each one. Then Yes. there will be subheading each two, each three like that. And if we move to different part of the website, we can go through internal linking. This thing Yes. we have covered in on page SEO. Yes. Nice. Good. Good, Debraj. What about others? What were your takeaways from the last class? that Ma'am, is we have also learned how to implement these heading and internal linking practically on WordPress. Okay. Yeah. Okay. So that was clear to you all. So we will now we will move to I'll teach you about a Google tool named as Google Page Speed Insight. Yes, Bharat, you can unmute yourself. Bharat, you want to say something? Okay, then let's move forward. So I'll be sharing my screen now. So I hope my screen is visible to you all. yes, ma'am. Okay, thank you for responding. So now I'll search for Google Page Speed, and this is basically a free tool for like website. Like if you want to analyze your traffic or check how your website is performing. So it is a free tool provided by Google. So you have to just open it and you have to paste the URL of the website you want to check. So today I want to check for this website. So I'll just click on analyze and it will start analyzing my website and it will provide me like the results for both devices like the mobile device and desktop version. So it will take some time. I have already loaded it on other tab earlier also. So it will show me like how the website is performing and what are the issues, how can we fix it. So as you can see that the performance is 68 and the accessibility is 91 and the best practices we have used for this website is 96 and for the SEO it is 92. So the rating overall is good. Now talking about like the first contentful paint. So the first contentful paint basically is when you open a website, like whenever you open a website, for example, I'm opening a website. So when whatever you see on a website, like for example, if I open it again, so like whatever I am seeing while when I open a website is considered as my first contentful paint, the things I'm able to see.
And then talking about the largest contentful paint, the largest contentful paint are basically the images or the large text on your website. So that is our largest contentful paint. And talking about the cumulative layout shift, so this is basically very important part, like if we talk about the performance of our website. So cumulative layout shift is basically when like if for example you are seeing this thing on my website, and if you scroll it will load like slowly. And so we have given this feature so that जो speed हमारी website की है, जो हमारी website का performance है वो अच्छा हो. 1 second. So I'll show you the cumulative layout shift example. If I go to NDTV, for example, this is a news website. So like if you see, I'll open any of the news. Like for example, I'll open this news. And whenever you are reading some news, there is you like a ad will pop up in between. Like you must have experience that whenever you are, for example, this is like here there will be an ad, and because of this ad the content is shifted, the above and the below content is shifted. That is considered as a cumulative layout shift. So because of this content, there was shift in the content already available on the website. So that is considered as cumulative layout shift. And the total blocking time is basically the time the website is taking to be responsive. And the speed index is basically what is the speed of our website when someone opens it. So, and then coming to the tree map, this is how you will the website will open in like whenever someone goes to our website, and this is how the things opens. Firstly you will see a blank page, like this is a millisecond thing. It will open quickly, and these are the ways how it will be opened actually. So that is considered as the tree map. And here you will see the diagnostics. So here it has given me the problems I have, like my website is facing, and I can do like I can cop up with these problems so that जो भी website को मतलब website की speed को hinder कर रही है, जो भी मेरी चीजें वो सब मैं remove कर सकूं. For example, they have told me to reduce the JavaScript execution time. तो मैं अपने डेवलपर को ये चीज बताऊंगी और वो इसमें चेंजेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. So, and it has already told me that I should avoid large layout shifts. कि जो मेरी वेबसाइट पे 2 लेआउट शिफ्ट उनको ऐसे फाइंड हुए जिनकी वजह से मेरी वेबसाइट का जो स्पीड है वो कम हो रही है. तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड इस तरीके से you will see many suggestions, and you have to just work on them. So you have to like properly size images, like image elements, और कोई भी आपका extra मतलब unused JavaScript या CSS files है, you have to remove them or reduce them if you are not using. So all of these suggestions you have to take care of, and you can talk to your developer about these things and you can work accordingly. Then as you can see, it has 90%, 91%, 91% of accessibility. कि कितना मतलब जो वेब ऐप हैं उन पे ये हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है. देन यू विल सी द प्रॉब्लम्स ओवर हियर कि जो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स हैं वो उनका कंट्रास्ट नहीं हो रहा. तो आपको ये बहुत सारे सजेशंस देंगे, ये आपके ऊपर है कि आपको उन सजेशंस पे कैसे काम करना है. देन वी हैव 96 बेस्ट प्रैक्टिसेस, and it has given me like 3 things जो मुझे ध्यान रखनी है यूजर की एक्सपीरियंस के हिसाब से, ट्रस्ट एंड सेफ्टी के हिसाब से, जर्नल जो हम बात करते हैं. देन
the SEO score is 92, which is a good score. And I have to just work on robot.txt files. Rest everything is fine. And if we check for the desktop version, the performance is 98%, which is a good score. And I have already told you about all of these things, and the tree map, it will open like this. And it has given me suggestions like what are the things I have to work on. So this was basically a page speed insight. You can do test for any of the websites. You just have to paste the URL here and you have to analyze, and it will give you the results related to mobile and desktop version both. So if you have any queries related to Google Page Speed Insight, you can just ask me right now. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम जैसे आपने बताया अभी कि जो ये रेड में आ रहे थे, लाइक वी कॉल्ड इट लाइक अ स्पैम टाइप, है ना? नहीं, मतलब वो स्पैम नहीं है, वो जस्ट ये है कि किन चीजों का आपको इमिडिएटली काम करना है, मतलब वो हाई प्रायोरिटी पे उन पे ओके, आपको तो वर्क मैम करना है। हम इसको एज मतलब रेड अलर्ट में जो भी दिख रहा है ये, हम इसको रिमूव हाँ जी। करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं वेबसाइट की? तो बेसिकली आपको रिमूव नहीं करना है, वो उसने सजेशन दिया। फॉर एग्जांपल एक सजेशन था कि मेरी जो मैं जावा स्क्रिप्ट की मेरी फाइल्स है वो जैसे ज्यादा है, तो मैं उनको रिड्यूस कर सकती हूँ अगर मुझे उनका कोई काम नहीं है। तो बस Okay. वो सजेशंस दे रहा है आपको, जरूरी नहीं है कि वो चीज आपको रिमूव ही करनी है। ओके, तो मींस हमें जैसे इतनी नॉलेज नहीं होती एज अ टेक्निकल पार्ट में, तो हम डेवलपर से हम डिस्कशन करके तब हम उसके ऊपर एक्शन हाँ ले जी, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली ये डेवलपर को ही करना होता है, ये आपको इससे अवेयर ओके सर, आपको बेसिकली डेवलपर को बताना है कि ये चीजें हैं, इन पे आपको वर्क करना है बस। तो मैम हमें अपनी वेबसाइट के लिए फिर किसी अलग डेवलपर को हायर करना पड़ेगा? मींस जैसे मेरी कंपनी की वेबसाइट है तो अभी जस्ट बनाई है, तो तो वो उसमें जैसे जिसने हाँ, बनाई है वही आपका डेवलपर है, तो वही आपको मतलब आप उसी को बता सकते हो चीजें कि ये चीजें हैं जिन पे आपको चेंजेस करने हैं वेबसाइट की। ओके। यस दीप्ति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, can you please explain first input delay again? And फर्स्ट then कॉन्टेंटफुल पेंट। yes, ma'am. Then four things that You are asking about this first yes, contentful ma'am. paint. Yes, ma'am. All four. All speed index, largest content. Okay. Okay. So I'll show you. So this is studentturn.com. So if I'm opening this website, तो मुझे सबसे पहले स्क्रीन पे ये दिखा। अभी ये पॉपअप बाद में आया, बट मुझे स्क्रीन पे सबसे पहले ये दिखा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज माय फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। ठीक है, जो भी मुझे सबसे पहले स्क्रीन पे दिखेगा वो मेरा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट होगा। मतलब कोई भी टेक्स्ट या इमेजेस होगा, जो टेक्स्ट या इमेजेस जो लोड होगी मेरी वेबसाइट पे, सबसे पहले वो मेरा फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट कंसिडर है। ठीक है, देन इज लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट की आपकी वेबसाइट पे जो सबसे लार्जेस्ट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट सॉरी ये इमेज है ये मेरी वेबसाइट की सबसे लार्जेस्ट इमेज है साइज वाइज, तो दिस इज कंसिडर्ड एज माय लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। एंड इफ आई कंसिडर कि मेरा जो भी H1 टैग है तो वो भी मेरा एक लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट में कंसिडर होता है। तो आपकी मतलब कोई भी हेडिंग हो सकती है या कोई भी इमेजेस होती है, तो वो जब लोड हो रही है, वो जब आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज योर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। एंड देन टॉकिंग अबाउट टोटल ब्लॉकिंग टाइम, तो टोटल ब्लॉकिंग टाइम इज बेसिकली कि आपकी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी जल्दी वो कितने मिली सेकेंड्स में वो रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी कंटेंट को लेके, आपकी वेबसाइट को लेके। देन इज क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट इज बेसिकली कि आपका जो भी कंटेंट है आपका मतलब मैंने अभी ये एनडीटीवी वेबसाइट का दिखाया था कि ये मैंने न्यूज ओपन करी तो यहाँ पे ये मुझे ऐड दिख रही है, तो इस ऐड की वजह से ये जो कंटेंट है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये ऊपर और नीचे शिफ्ट हो गए एंड बीच में वो ऐड आ गई। सो दैट इज कंसिडर्ड एज माय क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट।
ठीक है, तो उसके बाद आता है कि जो स्पीड इंडेक्स है कि कितनी जल्दी मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, कितना मेरा वेबसाइट का स्पीड इंडेक्स है। तो मतलब कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड, जब भी कोई उसको ओपन कर रहा है तो कितनी जल्दी ओपन हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज माई स्पीड इंडेक्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम, बट अगर जैसे मोबाइल में वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसमें मतलब कितनी स्पीड रहनी चाहिए कि मतलब सही है, अच्छा है वेबसाइट? देखो मैं आपको बताती हूँ, जो आपका फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है उसका एक जो गुड स्कोर हम कंसिडर करते हैं वो 0 सेकेंड से लेके 1.8 सेकेंड तक एक आपका अच्छा एफसीपी का स्कोर होता है। हम इसको शॉर्ट में एफसीपी बोलते हैं। तो ये एफसीपी का आपका अच्छा स्कोर होता है 0 सेकेंड टू 1.8 सेकेंड। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट तो आपका 2.5 सेकेंड या उससे कम होना चाहिए। तो दैट इज योर एलसीपी। देन इज, अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट की, तो 0.1 सेकेंड या फिर उससे कम आपका क्या होना चाहिए, 0.1 सेकेंड या फिर उससे कम आपकी क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होनी चाहिए। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों मोबाइल और डेस्कटॉप में दोनों में सेम रहता है? सॉरी। मोबाइल, अगर अपन मोबाइल में वेबसाइट ओपन करें तो भी यही रहना चाहिए, और डेस्कटॉप में ओपन करें तो भी यही रहना चाहिए स्पीड? हाँ जी, हाँ जी। और बेसिकली जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है मतलब वो 2.5 सेकेंड के अंदर अंदर, मतलब 0 से लेके 2.5 सेकेंड, 0 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड तक, सेकेंड्स के अंदर तक वो मतलब उस टाइम पीरियड में ओपन हो जानी चाहिए। सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्पीड की वेबसाइट की आपकी स्पीड जो 0 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड तक। ओके। ओके। एनीवन एल्स, किसी का कोई और डाउट है? Yes, no, anything, everything is clear? If everything is clear, please show me a thumbs up. यस मैम। Okay, okay, okay. ठीक है. If everything is clear to you all regarding this, then one second. Now I'll show you the other tool जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेकअप कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन, वन सेकेंड। I hope my screen is visible to you all. Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस। So there is a website named as SEO Site Checkup. So you just have to go to Google and like search for SEO Site Checkup, and this is the website you have to go. And here, I have analyzed last. So it is showing me कि मैंने last जो analyze किया था. I'll analyze SEO Site Checkup. So you just have to paste the website URL जिसका आप SEO site checkup करना चाहते हो. I'll be doing the same for studentearn.com. So this is like a paid tool, मतलब आपको 7 डे का ही, मतलब आप वंस आप सर्च कर सकते हो। तो मैंने पहले ही इसका सर्च किया हुआ है। सो दिस इज माय एसईओ साइट चेकअप। तो यहाँ पे मुझे सारी डिटेल सब कुछ आ गया है चीजें। तो आप ये रिपोर्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यू जस्ट हैव यू डाउनलोड, अगर यहाँ से पीडीएफ करोगे तो ये आपसे साइन अप या रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एंड देन वो 7 डे ट्रायल का होगा। तो यू जस्ट हैव टू कंट्रोल सी। तो यहाँ से आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो और ये आपकी सेव हो जाएगी आपके सिस्टम में। सो मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, बट आई गो फॉर अगेन।
तो बेसिकली आपको दिख रहा है जो एसईओ का स्कोर है वो है 63 और 100 में से 63 है। सो वेबसाइट का जो है और वो मतलब अभी बिलो एवरेज है। तो यहाँ पे आप ऐसे करके सेव कर सकते हैं, आपकी जो भी पीडीएफ में फाइल सेव हो जाएगी। तो आई ओपन इट। तो इन दिस वे आपका क्या है, आपकी पूरी जो फाइल है वो रेडी हो गई है, आपकी एसईओ जो आपने साइट चेकअप किया। तो यहाँ से क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें फिक्स करने हैं। तो इश्यूज अगर हम बात करें तो यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो ये सब हमें जो इसमें चीजें हैं हाई मीडियम और लो, तो हमें हाई प्रायोरिटी के बेसिस पे कि किस किस चीजों पे वर्क करना है, तो ये सब चीजें हमें अपने डेवलपर को बतानी है। देन ही विल वर्क ऑन दीज थिंग। बस हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। तो मेटा टाइटल टेस्ट की जो मेटा टाइटल है उसने बताया कि मेटा टाइटल का जो लेंथ होनी चाहिए वो आपकी ऑलमोस्ट 50 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो 50 to 60 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो हमारी जो मेटा टाइटल की लेंथ है वो 71 है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड हमें वो रिड्यूस करनी है। देन मेटा डिस्क्रिप्शन, उसने बोला कि आपका मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ठीक है, उसकी लेंथ भी सही है। देन जो गूगल सर्च रिजल्ट्स है वो हमें ऐसे दिख रहा है, ये डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल वर्जन सब चीजों में दिखा रहा है। जो सोशल मीडिया के टैग्स हैं वो हमारे अवेलेबल हैं कि नहीं, मोस्ट कॉमन जो हम कीवर्ड्स हमें यूज करने चाहिए वो कौन कौन से हैं वो भी बता रहा है। कीवर्ड का यूसेज कैसा है, और कीवर्ड्स रेफरेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं कि आप ये रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो यहाँ से आपको रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं। देन हेडिंग टैग टेस्ट की हेडिंग टैग कैसा है, तो H1 टैग उसने बताया, H2 टैग्स उसने मेरे बताए। देन robot.txt साइट मैप, ये सब क्या है, आपको एक अपने डेवलपर को बेसिकली बताना है जिन जिन चीजों के ऊपर आपको वर्क करना है। देन एसईओ फ्रेंडली यूआरएल टेस्ट, तो जो मेरे सारे वेब पेजेस हैं वो बेसिकली एसईओ फ्रेंडली हैं। और इमेजेस ऑल टेक्स्ट की, और जो आपकी इमेज है उसका मतलब ऑल्ट एट्रीब्यूट जो आपने नेम है इमेजेस का वो दिया है कि नहीं, वो भी यहाँ से पता लग जाएगा। एंड देन जो आपकी इमेजेस है वो प्रॉपर आस्पेक्ट में रेशियो में है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है एंड जो भी आपको वेबसाइट में प्रॉब्लम लगेगी वो आपको आपके डेवलपर को बताना। सो बेसिकली इस तरीके से आपकी एक पूरी जो है फाइल रेडी हो जाएगी कि आप अपनी आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट रेडी हो जाएगी कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किन किन प्रॉब्लम्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान देना है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। So these are all the things you have to keep in mind while doing SEO audit. Ma'am, please explain robot.txt. 1 second. So, Niklesh, can you please repeat what you were asking? Ma'am, please explain robot.txt. TXT file. So, Yeah. robot.txt file is basically a file जो आपको मतलब जो सर्च इंजन्स को ये बताती है कि कौन कौन से URLs उसको जो वेबसाइट की URL है वो क्रॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली the URLs that can be तो बेसिकली robot.txt फाइल में वो हमारी वेबसाइट की यूआरएल्स होते हैं जो सर्च इंजन को ये बताते हैं कि उसको कौन कौन से जो वेबसाइट के यूआरएल है वो क्रॉल और इंडेक्स नहीं करने। बेसिकली हम उनको इंडेक्स करने को मतलब जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं उनको इंडेक्स करने को मना करते हैं। वो उस फाइल में सारे यूआरएल्स मेंशन्ड होते मैम, ये फाइल मैं कहाँ अपने वेबसाइट में देख सकता हूँ?
क्या कह रहे हो निखिलेश? मैम ये फाइल, जैसे मुझे कोई अपना पेज है, उस पे हाँ कोई जी। कंटेंट है, उसे क्रॉलर को नहीं दिखाना है। जैसे मैंने किसी ऐसे वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया है जिसकी क्रेडिबिलिटी खराब है, और उसे मुझे ब्लॉक करना है अपने वेबसाइट से, और मैं रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल में वो ऐड करना चाहता हूँ। वो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल मुझे कहाँ मिलेगी? निखिलेश, आपने जो है बैकलिंक क्रिएट करी, जो आप कह रहे हो, जो कि अनऑथराइज्ड वेबसाइट है, यस। उसकी अथॉरिटी बहुत ही कम है, यस। ऐसा ही? अच्छा, या। के लिए क्या है कि आपको उसमें robo.txt हेल्प नहीं करेगा, उसमें आपको हेल्प करेगा डिसएवॉव टूल। ओके। गूगल का टूल होता है डिसएवॉव टूल, जो कि गूगल सर्च कंसोल का एक पार्ट है। वहां से जाकर के आपको उस यूआरएल की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है एक टीएक्सटी फाइल में। ओके। जो आपने बैकलिंक्स ली हैं आपकी वेबसाइट पे, वहां पे आप उसका ओके। यूआरएल दोगे, ठीक है, और उस फाइल को आप वहां पे अपलोड करोगे। ओके। हाँ, वो डिसएवॉव टूल के थ्रू होता है, वहां से आपको वो ब्लॉक होता है। इस प्रोसेस में आपको करीब 60 डेज तक का टाइम भी लग जाता है ओके। प्रोसेसिंग के। तो वहां से वो आपकी बैकलिंक जो है, जो भी स्पैम यूआरएल्स होते हैं बेसिकली, वो रिमूव हो जाते हैं आपकी वेबसाइट और सर ये जो रोबोट डॉट टेक्स्ट है, ये वो फाइल्स के लिए यूज होगा जो मेरे वेबसाइट पे प्रेजेंट है, से। ये उनको जो आपकी मुझे आपकी क्रॉल खुद नहीं की करने देना वेबसाइट है? के पेजेस के लिए होते हैं। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। यस। सो वेयर कैन आई फाइंड दिस टेक्स्ट फाइल? ये फाइल आपको मिलेगी जब आप अपना सी पैनल लॉगिन करोगे। लास्ट टाइम मैंने आपको सी पैनल लॉगिन करके दिखाया था। यस वहाँ सर। पे आपको एक फाइल मैनेजर मिलेगा आपको। फाइल मैनेजर ओके। के अंदर आपको ये robo.txt फाइल और साइट मैप एक्सएमएल फाइल वहाँ पे मिलेगी। ओके। ओके सर, सो मुझे उस पेज का लिंक, उस कंटेंट का लिंक डालना होगा या क्या डालना जैसे आप होगा? यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, हमने टाइप किया student.com/robots.txt। अब यहाँ पे यस जितने सर। भी पेजेस आपको डिसअलाउ में दिख रहे हैं, यानी ये हमने गूगल क्रॉलर को इंडिकेट किया हुआ है कि इन पेजेस को क्रॉल ना करे और इंडेक्स ना करे, क्योंकि हमें इस पे मेहनत नहीं करनी है, हम यूजर्स को नहीं शो करना चाहते। ओके। ठीक है, यूजर्स ओके। अगर हमारी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहता है तो वो खुद हमारी वेबसाइट पे आए और वहां से हमें वहां पे यूआरएल उसको मिल जाएगा, नेविगेशन में दिया हुआ है, वहां से रीड करे। हम सर्च इंजन पे इसको नहीं ओके। दिखाना चाहते, इनके कीवर्ड्स को रैंक नहीं करना चाहते, क्यों मेहनत करें इस पे। या थैंक यू सर। और एनीवन एल्स? किसी का कोई और डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। बट मैम इसमें जो असाइनमेंट होगा वो कैसे करना है, आप थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। अभी अभी हम असाइनमेंट जो है वो मतलब यही चीजें करनी है आपको। बेसिकली आपको वेबसाइट दी जाएगी, उसका ऑडिट करना है आपको, एंड उसका जो पेजपीडियन साइट से है उसका अच्छे से चेकअप करना है और फाइंड आउट करना है कि क्या क्या चीजें हैं जिन पे यू हैव टू वर्क ऑन। ओके मैम, ओनली जस्ट देखना है, चेक करना है कि क्या कहाँ कहाँ पे हम ये फिक्स कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ जी, तो इसमें हाँ कोई जी। एक्सेल शीट भी बनानी है मैम इसमें? आपको सारी जो गाइडेंस है वो असाइनमेंट में मिल जाएगी जैसे भी हो। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। And students, sorry, interns, please note this time I'll not accept any of the assignments after the deadline because बार बार डेडलाइंस देने के बाद भी यू आर नॉट सबमिटिंग इन नॉट इन टाइम, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। तो डेडलाइन के बाद अब कोई एक्सेप्ट नहीं होगी बिकॉज फिर बहुत क्योस हो जाता है चीजों को लेके कि आपकी प्रेजेंट असाइनमेंट चेक की जाए या आपकी जो पिछली आप असाइनमेंट्स भेज रहे हो वो चेक करें। और इट इज लाइक कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू टू सबमिट योर असाइनमेंट्स, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी अटेंडेंस 75% प्लस ऑल ऑफ योर असाइनमेंट, प्लीज कीप दैट लाइक इन योर माइंड कि वो कंप्लीट होनी चाहिए दोनों चीजें। अदरवाइज आपकी सर्टिफिकेशन में जब प्रॉब्लम आएगी फिर आप यू कैन नॉट लाइक ब्लेम अस फॉर दैट। तो आप इसलिए मैं पहले ही एडवांस में बोल रही हूँ कि कीप दैट इन माइंड। ओके मैम। Okay. ओके मैम। Yes. Okay, then if everything is clear, we will wind up today's session here only.
and I'll see you in the next session. Bye everyone. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye. Thank Have you. a nice day. Bye.